سلام کرتی ہوں میں اپنے قائد مفاہمت قائد زرداری صاحب کو، جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں، ہماری اسلامی جمہوری مملکت کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جو 3 سال سے اپنی سیاسی مفاہمت اور سیاسی حکمت سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے اوورسیز میں 22 ممالک پر مشتمل ایک خاندان ہے جس کے زرداری صاحب باپ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹیوں اور اپنے بیٹے کو بیوی کی شہادت پہ گلے لگا کر تسلی نہیں دی تھی، انہوں نے پورے پاکستان سے کہا تھا پاکستان کھپے، اور آج ہمارا ملک ان کے بھی دار و مدار پر ہے، اور ہم اپنے قائد کو، جنہیں میں قائد مفاہمت پکارتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کارکن کی حیثیت سے میں ان کو اپنا قائد سمجھتی ہوں۔ ہاں، ان سے میرا جو رشتہ ہے وہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا، میرا ان سے وہی رشتہ ہے جو آپ سب کا رشتہ ہے، بھٹوازم کا رشتہ ہے، اور جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ ہم شاہین لوگ پہاڑوں کی چٹانوں پر بسنے والے لوگوں کو خسرو سلطانی کی گنبد سے کیا کام؟ ہمیں سفید جوڑے میں دیکھ کر خسرو سلطانی پر کبوتر بنا کر بٹھانے والے آج خود شرمندہ ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن میرا لیڈر ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فٹ سولجر ہوں، اور میں آپ سب سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے قائد کی اسی طرح عزت کریں جس طرح میں کرتی ہوں۔ ہاں، میں نے بلاول کو بیٹا کہا، بلاول پوری قوم کا بیٹا ہے، بلاول بیوی کا بیٹا ہے، اور ہم خوشامدید کرتے ہیں بلاول کو لیاری کی سرزمین پر الیکشن کیمپین کی۔ ہم آج یہاں سے اس پلیٹ فارم سے نیو یارک کی ویلکم کرتے ہیں ہمارے بیٹے بلاول کو، اور لگائیں لطیف بلوچ آپ لیاری کا نعرہ، اور لگائیں جی بھٹو کا نعرہ سب لوگ، کہ آج ہم ابتدا کرتے ہیں الیکشن 2013 کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی کیمپین کی۔ آج ہم ایکٹنگ پریزیڈنٹ خالد ایوان کی موجودگی میں نیو یارک PPP USA اور تمام اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم آج الیکشن کی کیمپین اوورسیز میں اپنی پیپلز پارٹی کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے، 22 ممالک پر مشتمل ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نے بھٹو کا نام لیا وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم سب آپس میں محبت کرتے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ماں بیٹی میں بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اگر ہماری اتنی بڑی سمندر کی طرح بڑی پیپلز پارٹی میں چند خطروں کا کچھ ریپل ایفیکٹ ہے؟ ہماری پیپلز پارٹی ایک ہے، ہم اس کو انٹرنیشنل پیپلز پارٹی کا روپ دے رہے ہیں، ہم اس کو اوورسیز میں سب سے مضبوط پیپلز پارٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں سب یہ عزم کریں گے کہ ہم اس الیکشن میں اپنی پارٹی پر سے اس کرپشن کی چھاپ کو مٹا دیں گے۔ جس نے پیپلز پارٹی سے بے وفائی کی اس کی شناخت ختم ہو گئی، جس نے پیپلز پارٹی کو، جس نے زرداری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ہم اس کا نام مٹا دیں گے۔ ہم بیوی کے سوہاگ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں پروڈکٹیو سیاست کرنی ہے، ہمیں شوبز کی سیاست ختم کرنی ہے، ہمیں سیاست کو عبادت کی طرح کرنا ہے، تجارت ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی پارٹی کا، پاکستان کا، پاکستانی عوام کا خود احتساب کرنا ہے۔ ہم
PPP USA के प्लेटफॉर्म से अनकरीब इंटरनेशनल प्रेस में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से इंटरनेशनल प्रेस में एक जर्नल निकालने वाले हैं, जो मेरे भुट्टो का ख्वाब था। हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेसर एजाजुल हसन, जो प्रेसिडेंट ओवरसीज हैं, जिनको जरदारी साहब ने असाइन किया है, हम उनकी सरपरस्ती में बहुत जल्द पहला इंटरनेशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन करेंगे, जो आज तक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज का भी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुआ। क्यों होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है, और सारी पाकिस्तान की पार्टियां अब अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान में आज हमारे साथ फेडरेशन खड़ी है, अफवाज हमारे सदर और हमारी सरहदों की पासबान है, अदलिया रिकॉग्नाइज करती है कि प्राइम मिनिस्टर ही चीफ एग्जीक्यूटिव है, और अवाम हमारे सामने खड़ी है। हम अवाम को जवाब दें, हाँ, मैंने कहा है कि अवाम के कदमों तले ही हमारी जन्नत है। मगर एक मैसेज में PPP USA के प्लेटफॉर्म से हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी दे दूं कि इस इलेक्शन में हमारे लीडर्स को कैंपेन से ज्यादा हमारी अवाम को कैंपेन की जरूरत है। हाँ, मेरे भुट्टो ने वादा किया था रोटी कपड़ा और मकान देने का। रावल ने भी कहा है कि रोटी कपड़ा और मकान हम आपको देंगे, कुर्बानी आपका नसीब नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान की अवाम से कहना चाहती हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आज राइट है, खवातीन के हाथ में सेल फोन भी हमने दिया है, मगर 64 साल से इस कौम को हमने रोटी कपड़ा मकान देने का वादा किया, लेकिन क्या कौम को, अगर कौम जागी हुई ना हो, सो रही हो, अपने पैरों पर खड़ी ना हो, तो रोटी कपड़ा और मकान देने से कोई फायदा होता है? इस कौम के हर लंगड़े फकीर को मैं कसम खा के कहती हूँ जरदारी साहब की कि हम लंगड़े फकीरों को उनके पैरों पर खड़ा कर देंगे। फकीरों को अपनी कश्तोल छोड़नी होगी, अपने हाथ इस्तेमाल करने होंगे। हमारी कौम को ग्रास रूट लेवल पर मेहनत करनी होगी इन इलेक्शंस में। आप लोग ये जान लें कि जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो लीडर्स को वोट देते हैं, रहनुमाओं को वोट देते हैं, वो रहनुमा है आपके, आपका रास्ता तो आपको खुद तराशना होगा। अरे अल्लामा इकबाल की उम्मत के लोगों, अपनी जुस्तजू अपनी मेहनत मत छोड़ो, मत मांगो हुकूमत से। मीडिया टॉक शोज वालों, अपने बिजनेस की खातिर हर बात बेबात पे अवाम को महाजाराई पर मत उकसाओ। 3 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसे बहरानी वॉर से गुजरते हुए भी पाकिस्तान को सलामत रखी है। जरदारी साहब से कहते हैं कि वो तो किसी के साथ भी मुफाहमत कर लेते हैं अपनी हुकूमत के लिए। अरे लोगों, ये हुकूमत भी तो पाकिस्तान की है। इसके अलावा कुछ भी होता है तो हमारी हुकूमत पर इल्जाम। कोई आशना के साथ लड़की भाग जाती है, आशना का कत्ल हो जाता है, रहमान मलिक मुश्किल में आ जाते हैं, और फिर शोहर बीवी पर एसिड फेंक देता है तो जरदारी साहब का गला पकड़ लेते हैं लोग। क़यामत के रोज आप अपने घरेलू, अपने पर्सनल जिंदगी के अमाल के खुद जिम्मेदार होंगे, जरदारी साहब नहीं होंगे। आप लोगों के अमाल के जिम्मेदार। इस कौम को जागना होगा। हमसे लोग पूछते हैं कि ये गलियों में गोलियां क्यों चल रही हैं? कराची में 15 लोग क्यों मर गए? बलूचिस्तान में 11 लोग क्यों मर गए? सदा जी, हमसे लोग पूछते हैं कि कराची में गोलियां क्यों चली, खून की होलियां क्यों खेल रहे हैं लोग। मैं नहीं जानती कि खून की होलियां क्यों खेली जा रही है, मैं नहीं जानती कि गोलियां क्यों चल रही हैं, मैं नहीं जानती कि कोयटा में कल 15 लोग क्यों मर गए, मैं नहीं जानती कि फिर क्यों कराची में गोलियां चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के मैदान में खेलने वाले आज सड़कों पे धरने डालने लगे। एक डेकेड में 3 औरतों के साथ नाइंसाफी करने वाले आज तहरीक इंसाफ चलाने लगे।
जेल के मच्छरों से डरने वाले लोग आज हमें अवाम को सड़कों पे लाने की धमकियां देने लगे। चुनाचे मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग अपनी अवाम और सब लोग इस बात को हमारी हुकूमत से पूछने की बजाय कि आसिया सचिन यहाँ क्यों है, रेमंड डेविस वापस क्यों गया, बिन लादेन एबटाबाद से क्यों निकला, हम कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि कायदे आजम ने सोही अवाम को अल्लामा इकबाल के एक ख्वाब के जरिए ताबीर की थी और कायदे अवाम ने इस जागती हुई कौम के शऊर को बेदार किया था। जब तक आप लोग अपने शऊर को बेदार नहीं रखेंगे, ये वक्त आप लोगों पर से नहीं चलेगा। आप लोग इलेक्शंस कराते रहे, हुकूमतें बदलते रहे और मेरे अंदाज पे मत जाएं। मैं पीपल्स पार्टी की एक अदना कारकुन हूँ। ये अंदाज मुझे भुट्टो ने दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप सबका कल यही अंदाज हो और इसी अज़्म से हम इलेक्शन की कैंपेन करें और इंशाअल्लाह सक्सेस हमारी होगी। बाकी आप सबसे मुलाकात कल पाकिस्तान डे पर होगी और आप सबको रमजान मुबारक। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है हर करिया करिया, जिंदा है हर गोशा गोशा, जिंदा है हर नगर नगर में, जिंदा है वर्कर के दिल में, जिंदा है मजदूर के दिल में, जिंदा है किसान के दिल में, जिंदा है सरवर के दिल में, जिंदा है हम सब के दिल में। So the stakes are high, the time is short, and your role is essential. I'd like to say that Islam does not want to impose itself on the world. We say amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. We seek a world that holds the believers of all the religions, all the holy books, all the angels. We know this is very important, and I would like to make it clear about American and Pakistani friendship and chronic relationship that it is interferes and usually people discourage. But remember, America does not interfere, does not intervene until it becomes inevitable failure or impossible to secure the global security or economic curve by the regional authorities, and only then America intervenes. ये जिस तरह से तनवीर जमान का नाम मैं पहले से भी सुनती रही हूँ और आप मेरी बदकिस्मती कहिए। अपने बाप की पगड़ी का मजाक मत बनाएं। कितना बुरा लगता है जब पाकिस्तान में आपका अपना बाप आपके शोहर के आगे अपनी पगड़ी उतार के रखता। याद रखो कि मैं आपके बाप को बचा तो रही हूँ पगड़ी उतारने से, मगर आप उसी शादी की महफिलों में मेहंदी और मायूं में डांस मत करो। इस तरह डांस करके उन मर्दों को, अपने कजिन्स को, अपने चचाओं को एंटरटेन हुआ कि हम समझे कि हम बराबर चलेंगे, तो हमने मॉडलिंग शुरू कर दी। बहुत दुख हुआ वो तस्वीर देखकर यूट्यूब पे और ईमेल्स में, जब मिस पाकिस्तान स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर पाकिस्तान का झंडा लपेटकर वहां से हमें पाकिस्तान के परेड डे पे, पाकिस्तान डे पे ग्रीटिंग्स भेज रही थी। ऐसा मत कीजिए। बेटी हैं, बीवी हैं, हम तो वजीर आजम बनकर भी कमजोर रहे, क्योंकि हमें इज्जत नफ्स से अपनी खुदी को बुलंद करना होगा। तो फिर सारी एनजीओ, सारे एसोसिएशन, सारी फोरम्स और ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कदम ब कदम हमारे साथ चलेंगी। पगड़ियां किसी के कदमों में नहीं बल्कि वालिद के सर पर होंगी और आपके कदमों में नोट नहीं, फूलों की पत्तियां होंगी। जैसे कि लल्ला कोई खिलौना जो पावे, दुई चार दिन तो खेले फिर भूल जावे, रो भी न पावे इसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की।